from birth to 7 to 9 years of age. आपको पता है अक्सर एवरीबडी नोज कि जी एम्ब्लायोपैथेरेपी को हम क्यों पुश कर रहे होते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो एज ऑफ प्लास्टिसिटी या जो न्यूरोनल उसकी ग्रोथ का पीरियड है विच इज़ अबाउट 7 to 9 years ऑफ एज, तो उस वक्त तक वो हम उसको उससे पहले तक हम उसकी एम्ब्लायोपैथेरेपी कर सकें। लेकिन जो क्रिटिकल पीरियड है वो दैट इज़ द फर्स्ट 3 months ऑफ लाइफ, और उसके बाद उसकी विजुअल प्रोग्नोसिस ऑफ कोर्स it becomes a bit uncertain. Some suggest a delay in surgery past 4 weeks of age to decrease the risk of glaucoma. Very early, जब 1 or 2 weeks old बच्चों में जब सर्जरी की जाती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत हाई है, and it is because the eye is very soft and very reactive. The scleral, the cornea, the pupil, everything is very difficult to manage, and the worst part is the inflammation जो कि उस वक्त इसकी आँख में हो सकते हैं, and also the incidence of glaucoma when you do surgery at that age is very high. So personally also I feel that 4 weeks or 1 month of age is a good age to go for surgery if there is bilateral cataracts. And to comment on the point कि हम क्या simultaneous bilateral lensectomies बच्चों में कर लें, so I would suggest कि rather than going for it, we do one eye, you patch that eye, apply an eye shield. If you feel कि ये amblyopia create, अक्सर देखिए in a 1 month or a 6 weeks old child, half of the time, half of the day the child is sleeping. So it's not really the visual need उसकी उस वक्त है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, but then again a few hours भी जो हैं per day उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हैं to gain vision in that eye. So waking hours में हम उसको eye shield parents को बता सकते हैं, वो उसको provide कर सकते हैं, and the next week you go for the other eye because it is the safer thing to do. And in all things pertaining to children, we should keep safety first in our minds. The pediatric cataract surgery differs from the adults. Why? Because there is smaller, steeper cornea, shorter axial length, highly elastic anterior capsule, low scleral rigidity, and dense sutures. And also there is a propensity for severe inflammation, constantly changing refractive status, and tendency to develop amblyopia. We've already discussed all these things. Okay, now we have decided, हमने टाइमिंग भी डिसाइड कर ली, सर्जरी करनी है और कब करनी है, उसके बाद हम पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी सर्जरी के लिए. उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है पीडियाट्रिक कैटरेक्ट सर्जरी में उसकी बायोमेट्री है, राइट? सो हाउ टू परफॉर्म बायोमेट्री. आप पीडियाट्रिक केराटोमेट्री जो है, अब बिकॉज हमने कहा कि ये बहुत स्टीप कॉर्नियास होते हैं और इसमें हमने देखा है कि 1 साल से 1.5 साल की उम्र में तकरीबन जो मीन एवरेज जो है इनकी वो 45.56 होती है, और जो कॉर्नियल रिग्रेशन होती है बिकॉज ऑफ इमेट्रोपाइजेशन, और तकरीबन 42 डायबिटीज पर ये तकरीबन 54 मंथ्स तक जाके पहुंचता है. सही. तो आपकी जब केस आती हैं और आप एक्सेल लेंथ करना चाह रहे हैं और साथ में के रीडिंग आती है, और इफ़ यू फाइंड दीज हाई रीडिंग्स देन डोंट बी सरप्राइज बिकॉज steeper corneas are expected in children of younger age. What are the useful tips while performing keratometry in children? ये है कि no other contact procedure before keratometry. अगर आपने उसमें Perkins tonometry की है, या आपने staining की है, या आपने उसको eye rubbing किसी वजह से, so you should wait and have it done on the next visit probably, or wait for a few hours at least. Calibrate the keratometer before the scan, use anesthetic drops, compare the refraction, especially the axis with the K values. ये करना ज़रूरी है. Repeat if difference is more than 1 diopter between the two eyes. ठीक है. तो आपकी जो बच्चों में keratometry जो होती है वो आपकी usually हम handheld keratometer, not in older children, they can go and sit on the IOL master and have it done there, but the smaller children, स्पेशली बेबीज़, इन्फेंट्स, उनके लिए आपको उनको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करना है, इसलिए आपने उसमें हैंड हेल्ड केराटोमीटर्स को यूज़ करना है.
अगेन एक्सेल लेंथ जब आपने मेजर करनी है तो आपने यू हैव टू बी केयरफुल, इसमें बच्चों को सेडेट करना पड़ता है। कॉन्टैक्ट एक्सेल ए स्कैन्स हम लोग करते हैं। इमर्शन टेक्निक्स बहुत कम जगहों पे अवेलेबल हैं, ऑल्दो इट हैज़ एन एडवांटेज कि वो कॉर्निया को इंडेंट नहीं करता एंड इट इज़ मोर एक्यूरेट, बट वी हैव दिस कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ डूइंग इट, जिसमें आपकी प्रोब के टिप के और कॉर्निया के दरमियान फ्लूइड नहीं होना चाहिए। The probe should be perpendicular to the surface of the cornea and should be facing, pointing towards the macula. Normally आजकल हमारे पास very well trained optometrists मौजूद होते हैं जो हमारे लिए biometries को calculate करके हमें देते हैं और they perform the scans and also the keratometry. But if you are not aware of what could go wrong and what could and if you see the eye and you feel कि this does not hold true to what I've seen clinically. मैंने इतना स्टीप कॉर्निया देखा था, स्लिट बनाई थी, इतना मुझे स्टीप लगा, और ये कह रहा है इतना फ्लैट कॉर्निया। सो इफ़ यू आर, इसका मतलब उसने इंडेंट किया है उसको। तो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, you are aware of the procedures here, so you will be able to give your children, your patients, very accurate biometry measurements. So normally जो हमारी targeted refraction है, this is aimed at residual hypermetropia और emetropia. हमने ये देखना है कि बच्चे की एज क्या है और उस हिसाब से हमने उसको अंडर करेक्ट करना है. So this is one way of doing it, like it was being discussed earlier कि हम IOL को किस तरह अंडर करेक्ट करें, कितना करें. So normally जो है हम 1 से 3 साल के अंदर हम 4 डायप्टर्स को अंडर करेक्शन करते हैं. 3 to 4 पे हम +3 रखते हैं, 4 to 6 पे +2 से +3 रखते हैं, 6 to 8 years पे +1 and +2, एंड 8 years and above हम या तो नहीं रखते या अदरवाइज +1 तक आप छोड़ सकते हैं. बिकॉज यू मस्ट रिमेंबर कि आप जब भी सर्जरी करते हैं देर इज़ एन एक्स्ट्रा मायोपिक शिफ्ट. There is a myopic shift. Whether this is aphakia or pseudophakia, the eye is going to because आप ये देखें कि जो unilateral there have been studies जिसमें उन्होंने देखा है कि unilateral कैटरेक्ट सर्जरी हुई, एक साइड पे फेकिक आंख है, दूसरी तरफ आपने IOL इम्प्लांट कर दिया. सो द एक्सियल लेंथ ऑन द pseudophakic साइड increased much faster as compared to the one जो कि फेकिक आंख थी. In the absence of glaucoma. Which formula do you use for IOL calculation in pediatric patients? Which you prefer? देखिए हमारे यहाँ जो है हम SRKT ज़्यादा यूज़ करते हैं. बिकॉज इट इज़ ये जो इन्फेंट एफेकिया ट्रीटमेंट स्टडी थी, इसमें उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था कि हॉलीडे 2 जो है और वो हॉलीडे 1 एंड SRKT, these are for all practical purposes, they give good results for infant, for children. All excellence. Yes, and even for higher excellence, like more than 26 and above के लिए भी. लेकिन अगर बहुत शॉर्ट आंख है, छोटी आंख है, फिर हॉपर क्यू बेहतर है. But I'm doing this. I'm following proper Q. But we calculate the IOL formula with both SRKT and proper Q. And I will compare these results. Okay, I think that's a good project. जनरली जो हम फॉलो कर रहे हैं एट अल-शिफा वो ये है, वो अंडर करेक्शन का जो सिस्टम है हम वो ये करते हैं. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वी गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. बिकॉज 2 years and 2 years से बिलो जो है उनको हम 20% डिक्रीज़ करते हैं, और 2 से 8 के दरमियान हम 10% करते हैं, एंड 8 years and above वी डोंट अंडर करेक्ट. लेकिन इसके साथ साथ अगर देखें अब 2 to 8 इज़ लाइक 6 years, राइट, और इसमें एक्सियल लेंथ जो 2 years पे है वो 8 years पे का डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा. सो इट इज़ द 10% ऑफ द बायोमेट्री, बिकॉज बायोमेट्री चेंज हो रही है ना. 2 years पे जो बायोमेट्री मिलेगी आपको वो 8 years पे तो नहीं है. तो जो 8 years की या 6 years की बायोमेट्री है उसके हिसाब से उसका 10% है, और 2 years के हिसाब से उसका 10% है. सो आपके जहन में अगर ये पिछला चार्ट भी मौजूद हो और आप इसको भी जहन में रखें, और देन यू गो फॉर दिस 20 और 10%, इट्स वेरी सिंपल. लाइक अगर आप फॉर द ट्रेनीज और रेजिडेंट्स, अगर आपके पास 30 डायोप्टर्स का बायोमेट्री आती है बच्चे की, और आपने उसको 10% डिक्रीज़ करना है तो क्या होगा? 27. सो अगर आपने बैग में डालना है तो 27, और अगर आपने सल्कस में डालना है तो 26. वो एक डायोप्टर और आप कम कर देंगे, राइट.
डॉक्टर जी जी डॉक्टर अफजल, आप जो बात कर रहे थे ना कि हम 4 years पे 4% करें, सॉरी 4 डायोप्टर्स करें, तो उसमें बट आई फाइंड थोड़ा सा उसमें जो मुझे लग रहा है कि अगर देखें अगर 4 years पे उसकी डायोमेट्री 20 है तो 16 हो जाएगा। तो दैट इज़ 20%. तो आई थिंक दैट इज़ much larger under correction than we are looking for. Um, That is a fluctuating assessment. This one I think is more of a standard assessment. yes. क्योंकि अगर वो 30 है और आपने 4 में काट दिया तो 26 रह गया, ठीक है ना? जी आप एक That is फिक्स in आप एक general. फिक्स नंबर नहीं रख सकते फॉर एज ऑफ अंडर करेक्शन. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आप एक परसेंटेज टू दैट देखिए. a child at 4 might have a biometry of 20 or 25 or even 30 depending upon the axil length of the at that age. So it can be it's variable. So आप उसमें उसका percentage अंडर करेक्ट कर सकते हैं, but you can't assign a number to that age. Percentage is more logical and it's usually that is followed, percentage. जी पर That is more It is logical. also generated by that percentage. It's not my own generated, it is bookish generated and they made it by that, bring it out from the percentage. उन्होंने ये decide कर दिया कि Actually, there are different school of thoughts. different more methods. बिल्कुल. और It's a ये तो multi- हम मैडम आखिर में OSP से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी अपनी स्टडी हो, हमारी अपनी एक्सेल लेंथ हो. I think that is the best way to go. Yes, तो we will. Like Dr. Nazli is doing her study on the biometry methods, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ें एग्जैक्टली जी. सो सर्जिकल टेक्निक्स देखें, दो किस्म की मेन मैं बात करूँगी यहाँ पे. आई एम सॉरी टाइम ज़्यादा है और अब इस वक्त सब लोग थक चुके हैं आई गेस, बट आई ट्राई टू जस्ट ब्रीज थ्रू दिस एंड फिनिश इट अप. लेंजेक्टमी है जिसमें हम आईओएल नहीं डालते, राइट? और इसमें हमने लिम्बल स्टैब इंसिजन्स देते हैं जिसमें हम आई थिंक आई शुड गो ahead and explain it along with the video. शायद लोग जाग जाएं. इसीलिए तो मैं सवाल पूछती थी, फिर खत्म हो जाती है डॉक्टर साहब. नहीं मैं तो चाहती हूँ कि आप पूछें. हम तो भाई हुक्म के ताबेदार हैं. मैडम इजाजत देती है तो आप पूछ सकती हैं। मजाक थोड़ी रौनक रहती है. नहीं, मैं अगर आप इजाजत देती तो इसको So कह देते. we made a stab incision at the limbus and inserted an AC maintainer जिसमें बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन की वजह से आप अपने AC को वेल फॉर्म्ड रखते हैं और से बार बार जो AC शैलो एंड होता है जिसकी वजह से आयरस बार बार टच होता है टू द कॉर्निया एंड टू द इंस्ट्रूमेंट्स, जिसकी वजह से पिगमेंट रिलीज होता है और इन्फ्लेमेशन होती है. सो बाय यूजिंग एन AC मेंटेनर आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं. एंड नाउ आई एम यूजिंग अ 20 gauge कटर टू डू अ विट्रेक्टोरेक्सिस. ये देखिए एंटीरियर कैप्सूल काट रहे हैं और इस एंटीरियर कैप्सूल को जी दिस इज़ अ लेंजेक्टमी. विट्रेक्टोरेक्सिस कर रहे हैं. वो स्मॉल बेबीज में करते हैं. Ma'am, do you have the उसका एक separate एक capsulotomy वो नहीं. No. दिस इज़ अ लेंजेक्टमी अगेन जिसमें आईओएल नहीं डालना. हमारी जो FICO मशीन है, it has got posterior capsulorhexis के लिए उसमें capsulotomy वो है. It's diathermy. Diathermy है, वो diathermy से जो है. आई डोंट नीड डायथर्मी टू डू इट बिकॉज देखिए आप डायथर्मी से अगेन एनर्जी आप डाल रहे हैं आँख के अंदर जो इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करेगी. सो अगर तो रिक्वायर्ड नहीं है डोंट गो फॉर इट. व्हेन यू हैव अ कटर इन योर हैंड जस्ट गो विद इट. I'm एंड not using it because there is okay, if you are not using it, you're using an INA. Yeah. You use an INA. Yeah. Okay. And I go for a manual rexis. In lensectomy? No. And I go for LME, but I go for a manual rexis with Utrata, for example. But Dr. Nazi, I'm doing a lensectomy Yeah. in a 4-month-old child. This is a 4-month-old baby. और इसके अंदर हम देखें सेंटर में कैल्सिफिकेशन थी, वो शायद अभी पार्ट गुजर गया, जिसमें
डेंस सेंट्रल कैल्सिफिकेशन, जिसको आप कटर से ही रिमूव करना बहुत आसान होता है. आई प्रेफर डूइंग लेंसेक्टमीज विद द विट्रस कटर बिकॉज इट इज़ वेरी कन्वीनियंट. आप इंटीरियर विट्रेक्टोर एक्सेस करते हैं, आप अगर डेंस कैल्सिफाइड पोर्शंस हैं उनको बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं. आप उसके इसी के साथ पोस्टीरियर विट्रेक्टोर एक्सेस करते हैं और आप इसी के साथ एंटीरियर विट्रेक्टमी करते हैं. So I don't have to change my instruments and I don't have to change my ports, and I go by using these 2 ports on the corneal limbus at 3 and 9. और इसकी ports बनाने की एक और बड़ी वजह ये होती है कि आप anterior capsule polishing कर सकते हैं on either side by changing your hands. So 180 degrees on from temporally and then nasally आप अपना change hand करके तो आपने anterior capsule polishing करनी है. Basic internal का एक फायदा ये है कि your pupil is maintained, is dilated. जी बिकॉज इसमें Adrenaline. एड्रेनलिन भी हमने डाली है. जी एग्जैक्टली. सो अब आई डोंट नो हाउ टू Fast forward. इसमें वो एक्सक्यूज मी आइएगा, इस पे बार शो नहीं हो रही ना जिससे मैं इसको आगे कर सकूं. मी दैट वी हैव लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में सिर्फ इसको क्लोज करना ही दिखा रहे हैं और इंटीरियर विट्रेक्टमी करना दिखा रहे हैं. जिसमें आप पोर्ट्स में हम क्लोज करते हैं, हम जो सूचर यूज़ कर रहे हैं वो 10-0 वाइक्रिल है और उसका एडवांटेज ये होता है कि उसको आपने उसको रिमूव नहीं करना, वो एब्जॉर्बेबल सूचर है, प्लस उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, उसकी टेंशन कम होती है, बहुत जल्दी वो लूज़ होता है बिकॉज इट्स अ वाइक्रिल सूचर. इसलिए उसको उसकी वजह से स्टिग्मेटिज्म बहुत कम इंड्यूस होता है, राइट. लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, इट कैन ब्रेक इजीली. और दूसरी बात ये कि इसको आपको जहाँ नायलन का एक सूचर लगता है वहाँ इसके 2 लगेंगे. Single needle one. Single needle. जी 2 किस्म की पैकिंग्स में आता है, डबल एंडेड भी होता है, उसको हम काट लेते हैं, और सिंगल भी होता है. What about the inflammation of that? No significant inflammation with. Because It is extraocular, it is on the cornea, so there is nothing. Then what parameters are you using during this lensectomy? आपको जब आप vitrectomy करती हैं, तो वो I have that with me, इंशाल्लाह मैं अभी डिस्कस करती हूँ. सो अब जब हम पोर्ट्स बना रहे हैं, जब हम लेंसेक्टमी करते हैं, जब हम आईओल करते हैं, लाइक जिस तरह मैं डिफरेंट तरीके से करती हूँ, डॉक्टर नाजली डिफरेंट तरीके से कर रही हैं, तो देर आर डिफरेंट अप्रोचेज टूवर्ड्स इट. एंड ये नहीं आप कह सकते कि ये सही है वो सही है, दोनों कंपेरेबल हैं, दोनों के अच्छे रिजल्ट्स हैं. और इट इज़ परहैप्स सर्जन प्रेफरेंस के ऊपर ज़्यादा बेस करता है, लाइक देन एनीथिंग एल्स. ऑल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. कटर्स के साथ जो विट्रस कटर्स के साथ मैनेज करना इट्स मोर एक्सपेंसिव बिकॉज इसमें जो विट्रेक्टमी सिस्टम में चीज़ें यूज़ होती हैं, जो आपके डिस्पोजेबल कटर्स होते हैं, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव. और वो आप it's a big hindrance for institutes to provide that in large numbers to pediatric ophthalmologists. So anyway, सर्जिकल इंसिजन की जहाँ बात हो रही है तो हम 2 अप्रोचेस देते हैं, और उनमें से एक अप्रोच जो है वो अब हम बात कर रहे हैं LMA IOL की. जब आपने IOL इंसर्ट करने का प्लान करना है, आपने कौन से इंसिजन्स बना सकते हैं. So what I prefer is going for a scleral tunnel approach. Oh, sorry. ठीक है. And to expose that area, I apply a 4/0 retraction suture. Open up the conch from here. Apply the cautery. And don't you prefer the clear corneal incision? Because in later time, if the patient may need glaucoma surgery, and we are testing the conjunctival. We prefer this. And it is यूजुअली ग्लोकोमा जो है वो बहुत देर से डेवलप होता है. देखिए यहाँ पे हमने 11 के ब्लेड से हमने उसका
इनिशियल इंसिजन दिया, पार्शियल थिकनेस से क्लियर इंसिजन, देन क्रेसेंट के साथ उसका टनल बनाया, एंटर थ्रू विद द ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड ऑफ 2.75 और 3.2 whatever is available. Then I irrigated the anterior chamber with balanced salt solution जिसमें adrenaline थी, and I'm waiting for the pupil to enlarge. I've used the tryptan blue to stain the anterior capsule here. Now I'm washing it away. I'm side port से जाके हमने इसको incision दिया capsulotome से. Anterior capsule, I'm sorry it's very dark here, लेकिन it is visible on the laptop, लेकिन यहाँ नहीं नज़र आ रहा. लेकिन this is capsular rhexis in children is a big challenge. It is a very elastic capsule, और इसको centered रखना, इसको एक certain size का रखना, it's a challenge. So there is it advisable to be more corneal, to save the candid driver for future glaucoma surgery? The advantages of cyclical tunnel, sir, are that आपकी stigmatism नहीं होगी. Post operatively आपका जो पर operatively आपका iris prolapse बहुत कम होता है. आपकी iris की जो बार बार टच करना है और अंदर जाना बाहर, वो that is a bit जो एक advantages की वजह से मिलता है. And the also the astigmatism, which is the main thing, जिसकी वजह से हम ये करते हैं. And it is a stronger wound, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, because it is the vascular tissue. लिम्बस में भी सेट के दौरान लिम्बस में जहाँ फाइन ब्लड वेसल्स हों, उसमें भी सीलिंग इफेक्ट आ जाता है. That's true. बच्चों में कभी भी मैं I would not advise a clear corneal. अगर आपने corneal बनाना है port, go for a limbal port. So this is what I'm doing now, is the anterior capsule polishing. This is done to delay the formation of PCOs in children जिनके अंदर आप प्राइमरी पोस्टीरियर कैप्सुलोटमी नहीं करते, और जिनके अंदर करते भी हैं उसमें आफ्टर कैटरेक्ट सोम रिंग फॉर्मेशन वगैरह को मिनिमल रखने के लिए आप अगर इंटीरियर वो कर दें कैप्सूल पॉलिशिंग, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है. So we place the IOL in the bag, which is where we want them to be. Now these are vitral sutures that I've applied. Professor साहब आप एक लगाते हैं, मैं 4 लगाती हूँ. So मैं ज़्यादा डरती हूँ, इसका मतलब but it is vitral like I said, and vitral को आपको ज़्यादा देना है. And आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे fish mouthing होती है. You apply 2, and for like I said nylon के लिए 2 vitral. So for in that perspective आप देखें तो 3 से 4 सूचर मुझे चाहिए होते हैं when I'm closing a port of 3.2 millimeters, and then I'm closing the window here. So Mera, do you use sometimes this capsular tension ring or no? जी, subluxated stable subluxations में जो कि progressive नहीं है, उनमें आप कर सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट अप्रोच जो है हमारी वो है नेक्स्ट अप्रोच जो हम जाते हैं वो लाइक डॉक्टर नाजली सेड कि वो भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो हम करते हैं ओल्डर चिल्ड्रन में, और ऑल्सो जिनके अंदर हमें ये हमने प्राइमरी पोस्टीरियर कैप्सुलोटमी प्लान नहीं होती, जिसमें हमें कटर नहीं चाहिए, और जिसमें हमें ये मालूम हो कि इसका पीसी इंटैक्ट है. आपको ट्रॉमा का केस नहीं है, कुछ ऐसा जिसके अंदर आपको विट्रेक्टमी चाहिए, तो इसलिए जो इस तरह के केसेस हैं उसमें हम कॉर्नियल, क्लियर कॉर्नियल या लिम्बल अप्रोच बनाते हैं. ये जो केस है ये एक पोस्ट ट्रैब है. ये वीकेसी का पेशेंट था और सेकेंडरी ग्लॉकोमा के साथ प्रेजेंट किया था. ये स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ग्लॉकोमा था, और इसकी लेटर ऑन आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे इसकी ट्रैप हुई हुई है ऑलरेडी. यहाँ पे दिस इज़ द ब्लैब, और यहाँ पे इसकी पीआई है. सो मैंने आई एम ट्राइंग टू बी अ लिटिल अवे फ्रॉम द ब्लैब बिकॉज इट्स अ वर्किंग ट्रैप, फंक्शनल ट्रैप है इसकी. एंड इधर आप देखें कि हमने इसको लिफ्ट किया है, इसके फ्लैप को. ये सब एंटीरियर कैप्सूल
सोलर प्लाक है जिसको मैं कैप्सूल के साथ साथ इंक्रीज कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे लगा कि ये जो सॉरी आई वॉज होपिंग कि मैं इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकूँगी, बट लैपटॉप में ये ऑप्शन नहीं दे रहा अभी सुबह। सो दिस इज़ वन इंडिकेशन कि जब आपके पास, मैं कॉन्च को नहीं खोलना चाह रही थी बिकॉज लाइक फंक्शनल ट्रैप है, अब इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रही थी, इसलिए आई वेंट फॉर दिस। और इसमें मुझे क्लिनिकली वेरी फाइन कैटरेक्ट है, इसमें कॉर्टिकल एंड एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट मौजूद है, तो उसमें इट वुड बी ईजियर कि मैं सिर्फ LMA करूँगी और बैग में डाल दूँगी। जब आप करते हैं वो खुद ही बड़ा होता जाता है, तो स्टार्ट एम फॉर स्मॉलर। तो ये देखिए INA कैनुला हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये यूजुअली हम फेको मशीन के साथ इसको प्राइम कर लेते हैं, एंड वी आर नाउ डूइंग द LMA। Although I edited my videos to keep them very short, but we don't have time. So this is another way of performing the LMA IOL in a child. और इसमें इसी तरह देखिए कि मैं अब इसी INA कैनुला के साथ ही एंटीरियर कैप्सूल को पॉलिश कर रही हूँ। You can also use interior or posterior capsule polishers, जो कि आप अपने सिरिंज के साथ लगा के या अपने इरिगेशन कैनुला के साथ लगा के आप उसके साथ इसको कर सकते हैं। So the IOL is in, so we can go to the next slide now. And this was that case जो कि next first post-op day था, जिसमें इसको हमने, what I want to show you is कि यहाँ पे there is no inflammation, although it was a very inflamed eye. It was a very inflamed eye. एक चीज़ जो इसमें आगे, क्योंकि एंड में आपको अपनी वीडियोस के नहीं दिखा पाई, लेकिन हम इंट्राकैमरल यूज़ करते हैं moxifloxacin along with DEXA. We don't use in subconj injections and go for intracameral injections. ये internationally भी acceptable है, और इससे जो हमें रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं इन्फ्लेमेशन के हिसाब से। एंड इवन जो यंगर चिल्ड्रन हैं उनके अंदर तो हम ट्राइमसिनोलोन आई यूज़ इट in a very diluted aspect. Point. You use air bubble. No, not generally. I don't use it, but in this there was a slight bleeder, so I What was the slight? bleeder. जी, थोड़ा सा हाई फीमा को प्रिवेंट करने के लिए मैंने उसको एंड में थोड़ी सी एयर डाल दी थी। ये DEXA जो है आप इंट्राक्रैनियल यूज करती हैं? जी, 0.1। Is that free? जी सर। जी, डेक्सा जो इंजेक्शन डेक्सा है आपके पास, जी थिएटर में मौजूद होता है उसी, और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो आपकी बॉटल होती है उसी में से हम एस्पिरेट कर लेते हैं। मॉक्स यूज करते हैं? वेगामॉक्स स्पेशली? वेगामॉक्स। वेगामॉक्स, यस। जी, वी ओनली यूज वेगामॉक्स फॉर इंट्राकैमरल यूज। जी। So coming on to now, we have done the LMA, we have discussed the approaches कि हमने क्या यूज़ करनी है और उसमें क्या challenges हमें मिल सकते हैं, और साथ में आप एक challenge जो आपके पर ऑपरेटिव सर्जरी में challenge आपको मिलता है वो pupil का होता है। You see, आपका जो बच्चों की pupil, like I said, very difficult to dilate, उनको आप प्री ऑपरेटिवली भी काफ़ी कुछ आप ड्रॉपिंग्स कर लें, उसके बावजूद बाज़ दफ़ा
इवन जीए के हमारे एनेस्थेटिस्ट के साथ यही झगड़ा होता है कि आपने इसका प्यूपल कंस्ट्रिक्ट कर दें। होता ये है कि उसकी सिंपैथेटिक ड्राइव ख़त्म होती है और प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है जैसे ही बच्चा डीप जाता है इनटू अंडर एनेस्थीसिया। सो हाउ टू मैनेज दिस, उसकी एक तरीका तो ये है कि आप उसमें एक तरीका तो ये है कि हम उसकी जो बेलेसॉल सोल्यूशन है, जो हम इरिगेटिंग सोल्यूशन है, उसके अंदर हम एपिनेफ्रिन यूज़ करते हैं, एड्रेनालिन यूज़ करते हैं इन दिस कॉन्सेंट्रेशन। और सेकंड ये है कि हम उसमें अगर फिर भी वो डायलेट नहीं हो रहा, अगर वो डिस्ट्रोफिक प्यूपल है, वो डायलेटेड प्यूपल ही उसका बना ही नहीं है कि वो केमिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करे, तो वो डायलेट नहीं होगा और फिर भी आपने कैटरेक्ट सर्जरी करनी है। सो व्हाट टू डू देन यू गो फॉर आयरस हुक्स। ठीक है, अगर आपके पास आयरस हुक्स नहीं है, व्हाट टू डू देन, तो आप वेरी स्मॉल सिमेट्रिकल आयरिडोटमीज कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज बाज़ दफ़ा बहुत छोटे पीपल के अंदर इफ़ यू आर नॉट एबल टू विजुलाइज, नॉट एबल टू डू अ प्रॉपर रेक्सेस, आपकी पूरी कैटरेक्ट सर्जरी जो है वो एट रिस्क होती है। एंड आप बार बार आयरिस को टच कर रहे हैं, पीपल दरमियान में आ रहा है, एलएम में आपकी लेंस में रेस्पिरेशन भी अच्छी नहीं हो रही है, सो द होल सर्जरी जो है उसका आउटकम बहुत बुरा हो जाता है। अगर वहाँ पे परसिस्टेंट प्यूपिलरी मेम्ब्रेन के फाइबर्स पड़े हैं या ट्रॉमा की वजह से, यूवाइटिस की वजह से यहाँ पे कोई पोस्टीरियर साइनिकी हैं, प्लीज़ रिलीज देम फर्स्ट एंड देन पुश द एड्रेनालिन वाला BSS सोल्यूशन सो दैट इट डायलेट्स। इसमें डॉक्टर सुमेरा एक प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि नेवर डायलेट द पीपल 1 day बिफोर सर्जरी। जी आपने उसको डायलेट कर दिया फॉर एग्जाम्पल जी और नेक्स्ट डे जो है ना वो आप ऑपरेट करती हैं, तो व्हाट हैपेंस कि द पीपल हैज बिकम फटीग्ड, लॉजिकल फटीग में होता है, है। सही। So these are the iris hooks that we use. Okay, मुझे पर्ची मिल गई। मैं आपसे बहुत डर रही थी, लेकिन ये कि these are the iris hooks. इसके लिए आप 27 गेज के पोर्ट्स मैंने पहले बना लिए थे। अगर आप ये देखें, ये यहाँ पे पोर्ट है, ये पोर्ट है। आई विश आई कुड एडवांस द वीडियोज़, लेकिन अब नहीं हो सकता, तो बहरहाल हम इस तरह की 4 हुक्स लगा देंगे टू डायलेट द प्यूपल। ठीक है, ओके। दीज आर यूजली नायलन या पोलीफ्रोलीन की यूज़ की जाती है। You have to be gentle so that you don't tear the pupil. Initially आप इसको स्टेज वाइज प्यूपिलरी डायलेशन करते हैं, शुरू में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर देते। While you are applying, do it gently, and once you are done, you have applied all 4, then you can stretch it again. Okay. Now, if you are going for posterior capsulotomy and capsulotomy, then what's your approach? You first go for IOL transmission and then you go to the pars plana, yeah, before first you go for posterior capsulotomy and capsulotomy, then go for IOL transmission. What's your approach? मेरा ख्याल है मैंने उसमें वो लास्ट वाला हमने देखा नहीं, उसमें मैंने की थी पोस्टीरियर कैप्सुलोटमी, या भी वो आएगा शायद। I do it after, because I do a vitrecto. I prefer doing through the anterior approach. Because both approach can be used. Through pars plana, you can Yes, go on I do the pars plana approach only if the bag is very small and the lens is very tightly fitted into it. अगर आप उसने टाइट लेंस के साथ इतने छोटे बैग के अंदर आपने फिक्स करके लेंस को बिठा दिया है और उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर स्ट्रेचिंग द जोन्यूल्स और फिर आप डिसलोकेट कर सकते हैं, जोन्यूलर डिस्टेंस कॉज कर सकते हैं। अगर बैग अच्छा है, आई फॉर्म्ड है, अच्छा सब कुछ है, तो आप इंटीरियर अप्रोच से जा सकते हैं। अदरवाइज अगर टाइट बैग है तो फिर आप पार्स लेना चाहेंगे। मैनेजिंग द इंटीरियर कैप्सूल में जिस तरह मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें हम उसको पॉलिश करेंगे। हम उसकी जो साइज़ है वो मेंशन करना ज़रूरी है, हम बहुत छोटा नहीं रखते बिकॉज कैप्सुलर फिमोसिस का डर होता है एंड विजुअल जो एक्सेस की ओपेसिटी बन जाती है। तो दिस इज़ व्हाट वी यूज़ द विट्रेक्टमी मशीन, जिसकी सेटिंग्स डॉक्टर नाज़ली आप पूछ रही थी। तो यूजुअली हम 2000, दिस इज़ अ
सिस्टम जहाँ पे 6000 का कट रेट भी मौजूद है हमारे पास, तो इसलिए जो हमारे कटर्स हैं वो 6000 तक हम काट सकते हैं। उसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि विट्रस का पुल जो है रेटिना पे वो कम से कम होता है, और विट्रेक्टमी करते हुए जब आप विट्रेक्टमी कर रहे होते हैं आपके जो पुल की वजह से बाज़ दफ़ा वहाँ पे हेमरेजेस, स्मॉल रेटिनल हेमरेजेस एंड विट्रस हेमरेजेस आ सकते हैं। सो आप कट रेट आपका क्या होता है? यूजुअली मैं अराउंड 2000 to 3000 के दरमियान रहती हूँ। सो पीडियाट्रिक IOLs जो हम यूज़ करते हैं यूजुअली सिंगल पीस एक्रेलिक, जिसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों किस्म के, और अगर आपको इन्फ्लेमेशन का डर हो ज़्यादा या कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट्स हैं तो फिर हम हेपरिन कोटेड भी इस्तेमाल करना बेहतर होता है। अगर आप में सल्कस में प्लान कर रहे हैं तो इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ अ PMA और रिजिड IOL बिकॉज वो डिसलोकेट नहीं होगा। प्लस जो हाईएस्ट आपके पास साइज़ मौजूद है ऑप्टिक का अबाउट 6.5, यूज़ दैट सो दैट पीपल कैप्चर नाउ। अगेन आपके पोस्टीरियर कैप्सुलोटमी सब के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, और वो 3 to 4 मिलीमीटर्स के दरमियान होती है। और उसके अलावा फॉलोअप जब आप करते हैं इन पेशेंट्स का तो यूजुअली फर्स्ट मैं जो अंडर 2 IOLs मैं यूज़ कर जिनमें अंडर 2 years ऑफ एज जिनको मैं डालती हूँ उनको मैं 3 से 5 डेज़ के अंदर फॉलोअप के लिए बुलाती हूँ। अगर वो कहीं दूर से आए हुए हैं तो मैं उनको रिटेन कर लेती हूँ बिकॉज दैट इज़ द टाइम पीरियड जिसमें मैक्सिमम उसमें इन्फ्लेमेशन का चांस होता है। सो इफ़ आई सी देम दे हैव दिस इन्फ्लेमेशन, प्लस ये होता है कि वो घर जाएंगे वो ड्रॉपिंग सही नहीं करेंगे। सो इन द हॉस्पिटल नर्सेज ड्रॉप करती हैं, अंडर सुपरविजन उनकी ड्रॉपिंग्स हो जाती हैं 2 से 3 दिन, तो दैट्स वेरी एडवाइजेबल स्पेशली फॉर चिल्ड्रन जिनका 1 year और 1 year से कम मैं IOL इम्प्लांट्स करती हूँ। सो पोस्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन वेरी फेयर्ड, वेरी much complication that needs to be looked at. ग्लोकोमा को देखने के लिए जो टेक होम मैसेज ये है कि every child that comes to your OPD with a history of trauma or surgery, आप उसको IOP लिए बगैर घर नहीं भेज सकते। That's the final statement of the day. So posterior capsular opacification, yes, it's also a challenge जिसमें आप 3-4 साल के बच्चे को याक की मशीन पे बिठा के उसकी याक ऑप्सोलॉटमी करने की कोशिश करते हैं, और जिस किसी ने की हुई है उसको पता है कि इट्स अ चैलेंज सही। लेकिन इफ़ एट ऑल द चाइल्ड इज़ वेरी अनकोऑपरेटिव और द PCO फॉर्मेशन इज़ वेरी डेंस, देन यू माइट हैव टू गो फॉर अ सर्जिकल कैप्सुलॉटमी। दिस इज़ another feared complication in children, and it is usually because यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है एंड IOL डिसलोकेशन होती है, एंड इसकी वजह से मेम्ब्रेन फॉर्मेशन एंड ऑल पीपल कैप्चर कॉज करते हैं। विजुअल रिहैब पे जब हम बात करते हैं तो स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड सेकेंडरी IOL इम्प्लांटेशन फॉर AFAK। AFAK लेंसेज, AFAK ग्लासेस जो हैं दीज आर अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू कॉन्टैक्ट लेंसेज, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंसेज आर द बेस्ट ऑप्शन। इस तरह से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ बिकॉज उनकी अवेलेबिलिटी नहीं कम है और दे आर एक्सपेंसिव, दे आर इजीली लॉस्ट, इसलिए हम कॉन्टैक्ट लेंसेज की तरफ कम जाते हैं। बट इन द वेस्ट विदाउट क्वेश्चन वो इस तरफ से लेंसेक्टमी करते हैं, उस तरफ से कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं, एंड विजुअल रिहैबिलिटेशन इज कंप्लीट। Pseudophakic eyes may remember to give bifocal lenses to all children who have visual needs, especially school going children 3 years and above. उसकी वजह यह है कि आपने उसकी accommodation ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए that child needs full assistance for near work. Okay, managing amblyopia, another topic जिस पे I think मुझे next talk पे आके बात करना चाहिए। और लेकिन एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको कह दूँ कि ये these are very authentic multi center clinical trials जो किए गए हैं by pediatric पैडिंग की वजह ने किया है। इसमें जो रिकमेंडेशन दी गई है वो ये है कि अगर आपका मॉडरेट एम्ब्लायोपिया है, मॉडरेट एम्ब्लायोपिया इज़ 20/80 और लेस, तो उसमें आपने 2 घंटे की पैचिंग करनी है डेली, सही। एंड दिस हैज़ इम्प्रूव्ड, दिस इज़ एज गुड एज डूइंग 6 hours पैचिंग डेली। ये उनकी क्लिनिकल ट्रायल्स में उन्होंने ये बात साबित की है कि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह कंप्लायंस है, बेटर कंप्लायंस बाय द चाइल्ड। और अगर आपके पास सेवेयर एम्ब्लायोपिया है देन गो फॉर 6 hours पैचिंग एंड विच इज़ एज गुड एज डूइंग अ होल डे पैचिंग। अगर 10 हफ्ते तक 2 घंटे की पैचिंग करने से एम्ब्लायोपिया ट्रीट नहीं हो रहा, कंप्लायंस अच्छी थी उसके बावजूद,
then increase it to 6 hours planting. Okay, I'm not going to go for this video. So the vision prognosis is very much to look forward to in these children if they are treated well in time, and if the proper recommendations are followed as we discussed today. And the take-home message is the beauty of vision. This was a child that came to me a few days ago while I was making this presentation, and I operated on her right eye for her lensectomy. There is cataract still in her left eye, but the joy she has on her face is very evident, because I have this video with me, but the video somehow आपकी चल नहीं रही थी यहाँ पे. So I took these screenshots और इसमें आप देख सकते हैं कि ये अपने टॉय को कितना एंजॉय कर रही है. एंड जब आप when you achieve this kind of satisfaction and you achieve this, then all your efforts are rewarded. Thank you very much.